Uh, I'm basically having this second session with you people on Zoom so that you people could have, if you people have any kind of a query, we could have discuss it and मैं आप लोगों के साथ वो क्यूरी को उस क्यूरी को रिजॉल्व कर सकूं. And basically this session is all about the queries and problems that you people are facing in the online lectures which were provided to you people through video links. So if there is any query, any question, anything that you people would want to ask, then you must have to write down in the chat comment. I'll answer every single one of you. और आई होप सो कि आप लोगों ने सेकंड लेक्चर भी देख लिया होगा. Both the lectures were related to the understanding of the communication system and the communication networks. One thing I want you people to understand that I have shared an information regarding an assignment. So let the people come into the class, then I will explain more about the assignment that I have discussed uh, in the previous video, in the second video. That assignment is also uploaded into your LMS. So you people have to attempt that assignment. I guess the deadline of the assignment is 22nd. So it's not a big assignment. You just have to write 200 words. But for these 200 words, you obviously has to read something to attempt the assignment. And you people are very much aware of that, how to make an assignment. So if there is any question from your end uh, in the previous lecture, then obviously I'll explain it to you people. Obviously, the very first question is from Alishba. She wants to know about that what basically is protocol. So the protocol is a set of instructions. The protocol is basically a process, a name of a process. A protocol is basically a procedure in which you would adopt to do a communication. As I had explained in the videos, that there are different types of communication. The communication could be wired communication, communication could be wireless communication. So, and in wired communication, for example, like if you are using wires, there are still different types of communication. For example, like let me show you. I'm doing a share screen, and what I'm going to do, I'm going to start Packet Tracer. Here, I'm going to make two types of networks. One network would be of a wired network, and the other network would be of a wireless network. If you are not aware of this tool basically helps you to replicate the scenario of a network. For example, like this is the concept of a wired network, and for the wireless network, what I'm going to use is the wireless tablet and smartphone device. In the wired network, you can see the communication has to be carried out through wired channel. Wired channel means there would be cables involved for the connection between two computers from PC0 to PC1 and PC1 to PC2 or PC0 to PC2. For this purpose, you need wires. But in the wireless channel, in the wireless communication, you do not need any wires. The protocols are the set of instructions that helps you to do different kind of a communication based on the media that you had selected. For example, like if you are doing the communication using the wired media, then the protocol would be according to the wired media. That could be Ethernet, that could be
different protocol. If you are using the media, uh, if you are using the medium, the wireless medium, the communication would obviously the communication would be different. So in that scenario, the protocols that you people are going to use would be the different one. Okay. Afzal Hanif wants to know about the Ethernet. The Ethernet basically uh, is a protocol. That protocol is used for wired communication. In that communication, in wired communication, that sort of communication, you need your communication basically is between you and local area network. If you people are not aware of a local area network एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर लिमिटेड जियोग्राफिकल के अंदर कम्युनिकेशन की जा रही होती है, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर. फॉर एग्जांपल लाइक एक बिल्डिंग के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक फ्लोर के ऊपर 50 से 60 कंप्यूटर्स तक की जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो कनेक्शन हो रहे होते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हो रहे होते हैं. अब ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो हमारी शेयरिंग की ऑप्शन होती है, इफ फॉर एग्जांपल लाइक आई वुड शो यू, if you can see, I'm going to open a file, for example, like into your CCM. I'm sharing this file. This file is about network devices. I go into the share option. Sorry. This was not the one. I go into the give access to the option into the specific people, and from here I would add that I want to share this file with. I want to share this file with everyone. Add it and starts the sharing. All the people that are connected to this network with which I am connected right now would have an access of this file. This communication जिसके अंदर मैंने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कोई फाइल शेयर की है, अब मैंने लोगों को शेयर कर दी है ये फाइल. अब मुझे ये नहीं पता लगेगा कि किस किस ने मेरे कंप्यूटर पे आके इस फाइल को एक्सेस किया. Ethernet basically is a protocol for wired communication. केबल कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है, और इस प्रोटोकॉल के अंदर जो कम्युनिकेशन करने वाला होता है, यानी कि मुझे उस कम्युनिकेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. तो ये बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, ये ईथरनेट कम्युनिकेशन होती है. ओके. अनीजा, सबसे पहले जिशान फरूक का क्वेश्चन आया, सर वो तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होंगे. देखें, जो वायरलेस, दो तरह के लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं. एक वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क है, एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है. जो आपकी कम्युनिकेशन है वो दोनों तरह से होती है. लोकल एरिया नेटवर्क्स वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है. जो हमारा वायर के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया होगा, केबल्स के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाया होगा, उसके अंदर ईथरनेट यूज हो रहा होता है. और जो हमारा वायरलेस के जरिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया होता है, उसके जरिए 802.11 प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा होता है. 802.11 जिसको हम वाईफाई कहते हैं, ये वाला हमारा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा होता है. अच्छा, अनीजा का क्वेश्चन था कि वो पूछना चाहती है कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपने टोकन की बात की थी, तो टोकन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है उसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस हुए हैं इंडिविजुअली, एक एक करके. ठीक है. तो वो बेसिकली जो है, क्या नाम है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, टोकन एक तरह से एक मैसेज जनरेट है. जिस तरह हम कह देते हैं कि जब हम कभी बैंक्स में जाते हैं या किसी फ्रेंचाइज वगैरह के ऊपर भी आप जाते हैं, तो वहां पर आपको टोकन मिलता है कि जब आपकी बारी आएगी आप तब आकर, जब आपकी बारी आएगी
आप तब आकर अपनी वो रिक्वायर्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सेम इज द केस इन द रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी बेसिकली यही होता है कि व्हेन इट कम्स टू योर टर्न, आप अपनी टर्न के ऊपर आते हैं और आकर अपने वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। होती ये बस टोपोलॉजी की तरह ही है, लेकिन इसमें सबको बारियां अलॉट कर दी जाती हैं। अच्छा, निम्रा रज़ाक हैं, शी वांट्स टू नो अबाउट व्हाट आर ब्लॉग्स। तो मैं आपको निम्रा ब्लॉग्स के बारे में बुक से बताता हूँ, जहाँ पर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। सॉरी, let me first okay, there is blogs. अच्छा, बेसिकली जो ब्लॉग्स होते हैं ना, मैं आप लोगों को, ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीकेकार होता है, ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीकेकार होता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज अपनी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में मैसेजेस लिख रही होती हैं। मैसेजेस से मुराद ये होता है हमारे पास कि वो अपडेट्स लिख रही होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैं इंटेल की कंपनी के अंदर हूँ, और इंटेल की कंपनी के अंदर मैंने कोई न्यू डेवलपमेंट की है, और जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई एवेल्युएटर, कोई राइटर इसके बारे में लिखे, तो उस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स के फॉर्म के अंदर उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया जाता है। फिर ब्लॉग सिर्फ आईटी से रिलेटेड नहीं होते, ब्लॉग इज अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो जो बेसिकली ब्लॉग्स के अंदर, इट कुड बी अबाउट फूड, इट कुड बी अबाउट एनी इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल राय लिख रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में, और नेक्स्ट पर्सन उसको पढ़ के उसके ऊपर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा होता है। तो वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी ब्लॉग्स के जरिए होती है। ज़िशान फारूक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, अगर एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल होता है? मींस लोकल एरिया नेटवर्क या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों का फ़ायदा क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? द वेरी फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को, तमाम लोगों को समझनी है, वो ये है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, जो वाइड एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, कोई भी, उसमें जो सबसे अच्छी कम्युनिकेशन होती है वो वाइड कम्युनिकेशन होती है। हमेशा केबल्स के जरिए की जाने वाली कम्युनिकेशन सबसे अच्छी कम्युनिकेशन होती है किसी भी सिनारियो में। आप लोग एक चीज का अंदाजा लगाएं कि मेरे पास जो घर के अंदर, मसलन आप में से, आई गेस, आई डोंट नो कि every single one of you has done it or not, but अगर हम लोग जो है, जब कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, शायद आप लोगों ने कभी दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा थ्रू अ केबल ट्रांसफर किया हो। आई डोंट नो कभी किया है कि नहीं किया, हम लोग तो काफी ज्यादा करते हैं। मसलन मैंने अगर 100 GB का कोई डाटा ट्रांसफर करना है, मेरे पास तो भाई एक्सटर्नल हार्ड भी नहीं है, मेरे पास USB भी नहीं है, मैं 100 GB का डाटा कैसे ट्रांसफर करूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, दो कंप्यूटर्स का एक कनेक्शन बनाता हूँ केबल के जरिए, जिसको हम लोग लैन केबल भी कहते हैं, जिसको हम ईथरनेट केबल भी कहते हैं। उसके जरिए कनेक्शन बनाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि जी आप मतलब वो दोनों के दरमियान डाटा ट्रांसफर करवाता हूँ। वो जो डाटा ट्रांसफर होता है उसका रेट मतलब जिस स्पीड के ऊपर डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है वो बहुत ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने किसी यूएसबी के जरिए या एक्सटर्नल ड्राइव के जरिए कम्युनिकेशन करनी होती है तो मेरा डाटा रेट कम होता है। सो द वायर्ड कम्युनिकेशन इन एनी सिनारियो इज ऑलवेज द बेस्ट वन। जो जो भी कम्युनिकेशन आप केबल्स के जरिए कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन हमेशा बेहतर कम्युनिकेशन होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे सिनारियोज ऐसे हैं कि जहां पर केबल्स बिछाना मुमकिन नहीं होता, तो वहां पर हम लोग वायरलेस नेटवर्क को रखते हैं।
फिर वायरलेस नेटवर्क एज अ बैकअप नेटवर्क के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल लाइक मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर मेरे 50 कंप्यूटर हैं, मैंने केबल्स के जरिए, तारों के जरिए तो कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस भी मौजूद हैं जिन डिवाइसेस ने वायरलेसली भी मूव करना है। तो उन सिनारियोज के अंदर हम लोग वायरलेस नेटवर्क भी साथ में रखते हैं। लेकिन फॉर आइडियल केसेस, फॉर बेटर केसेस, wireless network are wired network, cable network are always the better one, और यही यूज होते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो किसी तरह का भी नेटवर्क हो। जो हमारे वायर्ड नेटवर्क हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स आने के बाद तो ये नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बेहतर होने लगे हैं। हमारे पास तो घरों में फाइबर ऑप्टिक नहीं आती, हमारे पास घरों में पीछे से एक केबल आती है और उस केबल को आगे कन्वर्ट कर देते हैं फाइबर ऑप्टिक में, कन्वर्टर लगा के। लेकिन जो है ओवरऑल, अगर फ्रॉम एक्सचेंज टू होम अगर फाइबर ऑप्टिक आनी शुरू हो जाए तो हमारी जो डाटा कम्युनिकेशन होगी वो जीबीज में होगी। अभी तो हमारे पास 5 MB का, 10 MB का, 2 MB का कनेक्शन है। तो अगर हमारे पास डायरेक्ट डाटा कम्युनिकेशन आनी शुरू हो जाए तो वो जीबीज में आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली एक कॉमन पर्सन की जरूरत क्या है, हमने ये भी देखना होता है कि वो जो कम्युनिकेशन उसने करनी है तो उसको उसको कितने डाटा नेट की या डाटा स्पीड की जरूरत होती है। एनीवेज, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछे मुझसे। आई एम हियर टू आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? आपने इसके बारे में कुछ बताया है बट सॉरी मुझे आवाज। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क के अंदर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाकर दूर दूर दराज के इलाकों के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक साहिवाल के जितने भी नेटवर्क्स हैं, बल्कि साहिवाल के नेटवर्क को मैं नहीं इंक्लूड करता, मैं एरिड यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वो हैं क्या नाम है, क्या कह सकते हैं उसे, नेटवर्क्स बने हुए हैं, जितनी भी लैब्स के अंदर नेटवर्क्स बने हुए हैं, सर्वर रूम में है, ऑफिस में है, जितने भी नेटवर्क्स बने हुए हैं, अब वो तमाम नेटवर्क्स ने जब एरिड के बाकी कैंपसेस के साथ कनेक्ट करना होगा तो वो जो नेटवर्क बन रहा होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि उसमें जियोग्राफिकल एरिया जो यूज हो रहा होता है वो वाइडर जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक हो गया? इफ देयर इज any other question that you people would want to ask, you certainly should. Meanwhile, I'm going to unmute the GR, if you can raise your hand. There is Lishpa Amin. हेलो लिशपा, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? कैसे हो आप, कैसे हो? जी ठीक, बिल्कुल। हाउ आर योर ऑनलाइन क्लासेस गोइंग? सर अच्छी जा रही हैं। आप लोगों का, मैंने आप लोगों को ये भी एक चीज बतानी थी कि आप लोगों की ये सेशंस जो हैं वो अब रिकॉर्ड हुआ करेंगे। इसमें कोई भी जी सर। कम्युनिकेशन जो बिटवीन यू एंड मी, कोई भी चैट वगैरह that would be recorded and that would also be provided to you people, या आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सो इन केस अगर बाद में भी मतलब कोई बंदा नहीं आ सका ये सेशन अटेंड करने और वो बाद में भी इन सेशंस में से गो थ्रू करना चाहेगा तो ही और शी कैन क्वाइट इजीली। अच्छा, I was talking to Alishpa and she, I guess, muted herself. Okay. ठीक है. Alishpa is saying that there is going on some construction in her home. तो इस वजह से. Okay, Ramzan Arif is here and he's saying अस्सलाम वालेकुम सर जी एक राउटर के का दूसरे राउटर से कितना फासला होता है मिनिमम, और ये केबल के जरिए कनेक्ट होते हैं? ये डिपेंड कर रहा होता है रमजान कि आपके दो राउटर्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर वो एक ही बिल्डिंग के अंदर पड़े हुए हैं आपके राउटर्स तो वो उनका जो राब्ता होता है वो क्या नाम है, बेसिकली जो उनका राब्ता होता है वो केबल के जरिए ही ऑब्वियसली होता है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस के ऊपर भी पड़े हुए हैं तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो वाइड ही होती है।
फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप साहिवाल से लाहौर राउटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन ये नहीं होगा कि डायरेक्ट साहिवाल में एक राउटर पड़ा है और आप लाहौर तक केबल लेके जा रहे हो, वो ऐसा नहीं होता। आप साहिवाल से उकाड़ा, उकाड़ा से फिर आगे फिर आगे फिर आगे कसूर, और यूं करके आप लाहौर तक कम्युनिकेशन पहुंचा रहे होते हैं। तो वो तमाम की तमाम कम्युनिकेशन जितनी भी होती है वो वाइड कम्युनिकेशन ही होती है। ओके, मुनव्वर हुसैन है, वो पूछ रहे हैं कि सर जीपीएस और जीएसएम के बारे में बताइएगा। ये दोनों चीजें हमारे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। जीपीएस भी हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में आना है, डिटेल में इसके बारे में मैंने बताया है, और जीएसएम भी हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में इंक्लूडेड है। लेकिन फॉर शॉर्ट बीइंग अभी के लिए जो जीपीएस होता है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो सेंडर होता है वो बेसिकली क्या नाम है, हमारा जो सेंडर होता है वो, या रिसीवर, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर जीपीएस मॉड्यूल लगा होता है, और वो जीपीएस मॉड्यूल कनेक्ट होता है थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट में हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जहां पर हमारे सिग्नल्स जाते हैं और हमारी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है। जीएसएम हमारा जो सिस्टम होता है, ये हमारा इसको कहते हैं हम लोग, हमारा बेसिकली ये सेलुलर नेटवर्क कहते हैं हम इसे। तो जीएसएम नेटवर्क के अंदर सेलुलर नेटवर्क होता है जिसके अंदर हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही होती है, और इसमें हमारे पास एक सिम मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। सिम को हम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कहते हैं, जिसके जरिए हम लोग हमारी नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कंप्लीट नेटवर्क को जो है हम जीएसएम नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है सोनिया, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट पीयर टू पीयर नेटवर्क इज। यू हैव टू फाइंड इट yourself. I have uploaded the assignment. Let me show you a short example, not the short example, but the information regarding your assignment. If everyone can see that, or you would be able to see that in the video. So basically in the assignment portion for the MCS one, I had uploaded an assignment in here. You're going to download it from here, and the assignment is write down the difference between the peer-to-peer networks and client-server network in just 200 words. Make table or add figure to explain better. You do not have you cannot copy paste it. मतलब आप लोग इंटरनेट के ऊपर जाते हो और इंटरनेट के ऊपर से फाइंड आउट करते हो, तो आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। सॉरी, तो आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। आप लोगों को वो तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी वो बेसिकली आप लोगों ने खुद पढ़ के समझ के खुद लिखनी होगी अपने पास इंग्लिश से। अच्छा सर, नेटवर्क में इंटरनेट और एंड एक्स्ट्रा नेट में डिफरेंस बता दें। आपने बताया था एक्स्ट्रा नेट अलाउज कस्टमर और सप्लायर्स एंड इंटरनेट इज इंटरनल नेटवर्क। सर अच्छा, सिंपल है, यही चीज है बेसिकली। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क बनाया है जिसके अंदर मैंने वेब नेट सर्वर भी बना दिया है, मैंने डाटा सर्वर भी बना दिया है, मैंने उसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर्स भी लगा दिए हैं। मैं डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अपने उस नेटवर्क के जरिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लेकिन मैं उसको सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो इंटरनेट है। अगर मैं उसको रेंट आउट करना शुरू कर दूं, मैं उसको कहता हूं कि और लोग भी उसकी सर्विसेज हासिल करना शुरू कर दें। जैसे मैं अपने घर के लिए अगर इंटरनेट लगवाता हूं तो वो इंटरनेट है, और अगर हम शायद ही उसको यूज करने लग जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा नेट बन जाएगा। मीन्स के कस्टमर्स और सप्लायर्स जो कि बाहर के नेटवर्क से होते हैं, अगर वो भी उसको यूज करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा नेट बन जाता है। सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं आप नेटवर्क कनेक्शन के लिए? नेटवर्क कनेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर, अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर आप, इसका नाम है बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप लोगों की लैब स्टार्ट होने वाली है, तो जो आप लोगों की लैब होगी वो बेसिकली सारी की सारी
जो है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर में ही होगी। अच्छा सर, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी? सर इसमें हब होता है। स्टार टोपोलॉजी बेसिकली कैसी टोपोलॉजी है जिसमें एक हमारे पास ये मिडिल डिवाइस होती है और इसके नीचे हमारे पास ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोग, हमारी जो तमाम कम्युनिकेशन होती है वो हमारे कंप्यूटर से मिडिल डिवाइस के पास जाती है और वो मिडिल डिवाइस आगे रिस्पेक्टिव क्या नाम है सेंडर को भेज देती है। रिसीवर से वो मिडिल डिवाइस के पास जाएगी और वहां से वो रिसीवर के पास चली जाएगी। सो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हब भी यूज हो सकती है, उसके अंदर स्विच भी यूज हो सकता है। बाद की जो वीडियोस हैं उसके अंदर आपको इसके बारे में जरा ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाल्लाह। कीप ऑन कमिंग द क्वेश्चंस। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर जी बस नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? बस नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है? बस नेटवर्क कोई नेटवर्क नहीं है, इट्स अ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से मुराद क्या होती है कि कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का क्या तरीकेकार होता है। तो वो जो तरीकेकार होता है वो बेसिकली जो मतलब आपने किस तरह केबल्स कनेक्ट किए हैं वो तरीकेकार, अगर एक ही केबल है और उसी के साथ सारे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है तो वो हमारा बस नेटवर्क बन जाता है। सर आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड बता दीजिए। आईपी एड्रेसेस बेसिकली एक वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं। ये आईपी एड्रेसेस जरूरी होते हैं, किस चीज के लिए जरूरी होते हैं बेसिकली कि आपकी जिस तरह आपको पता है कि आपका एक रोल नंबर है और एक आपका एनआईसी कार्ड है। आपकी जो कम्युनिकेशन की पहचान होती है वो आपके रोल नंबर के थ्रू होती है। तो वो जो रोल नंबर के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन की पहचान हो रही होती है वो आपका आईपी एड्रेस होता है। हमारे नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्किंग की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस। आप अगर एक घर के अंदर ही आप देख लें तो 5-7 डिवाइसेस तो होंगी, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं। इन तमाम के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इनको एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हम वर्चुअल एड्रेस देते हैं। ये एड्रेस बदलता रहता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये बदलता रहता है, ये नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी कर रहा होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है इसको हम आईपी एड्रेस कह रहे होते हैं। चले, थैंक यू सो वेरी मच। दिस सेशन वाज वेरी 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 गुड सेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर सम मोर वीडियोस विद यू पीपल। आप लोगों के साथ और वीडियोस शेयर करूंगा। अब आप लोग असाइनमेंट के ऊपर काइंडली काम स्टार्ट कर दें। 22 आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन है, असाइनमेंट सबमिट करवाएं। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विद यू पीपल एज वेल, ये जो रिकॉर्ड हुई है हमारी। सो अगर still if there is any question, I guess I have tried my level best to answer every single one of you. If there is anyone that who wants to talk to me, he can raise his hand. मैं उसका mic unmute कर दूंगा and I will talk to that person. और जी बिल्कुल, असाइनमेंट एमएस वर्ड में आपने बना के सबमिट करवानी है। मुनव्वर पूछ रहे थे कि वर्ड में बनानी है, तो ऑब्वियसली आपने मुनव्वर आपने वर्ड में बनानी है। पोर्टल पे आपने अपलोड करनी है। पीपीटी फाइल, अलिशा मैं समझ नहीं सका, पीपीटी फाइल का आप क्या पूछ रही हैं मेरे से? जी जिशान फारूक। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था एक। जी जी बिल्कुल जिशान। सर जो जैम्बर लगे होते हैं, मसलन ये जेल में भी लगा हुआ है, जी जैमर्स। तो जब इनके जी सर जो इनके करीब जाते हैं तो सर मोबाइल्स के नेटवर्क जो होते हैं वो कैसे एकदम ही खत्म हो जाते हैं देखें वेव के जरिए से। देखें मोबाइल्स की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो तमाम कम्युनिकेशन एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है। आप उस फ्रीक्वेंसी को की एंटी फ्रीक्वेंसी जनरेट करवा दें। आपको पता है ना वेव्स होती हैं, जी सर। तो वेव्स की एंटी वेव्स जनरेट करवा दें और दैट्स इट। पॉजिटिव का नेगेटिव जनरेट करवा दें, तो वो जब नेगेटिव जनरेट होता है तो वो पॉजिटिव का असर जाहिल करके उसको न्यूट्रल कर देता है।
तो वो जब वेव्स ही नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन ही नहीं होती। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो जी जी अलिशा। सर, पोर्टल पे हमारे लेक्चर शो नहीं हो रहे और असाइनमेंट भी शो नहीं हो रही किसी भी स्टूडेंट को। ओके चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको, मैंने तो वैसे पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी थी, एनीवेज मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग गूगल क्लासरूम, चलें आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। चलें, ठीक हो गया, आज ठीक हो गया, पोर्टल पे थैंक यू। देखता हूँ, अगर पोर्टल पे नहीं होता तो आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं साइन करके आपको बता दूंगा, आप उसके ऊपर सबमिट करवा दीजिए। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस सेशन वाज वेरी हेल्दी। जी जी अलिशा। सर। जी बोले। जी सर, मैं यही पूछना था बस लेक्चर्स का ना। चले, थैंक यू। This session was very healthy, and I'm going to provide you the recording of this session as well, so that you can listen it again and again. और lecture number 3 भी मैं आप लोगों को provide कर दूंगा। And that's all from my side. If there is any question from your side, आप लोग मुझे email कर सकते हैं, आप लोग Google Classroom के ऊपर send कर सकते हैं, और आप लोग जो हैं वो मुझे क्या नाम है CRs या GRs के थ्रू send कर सकते हैं। I'll try my level best to accommodate you people with best of my expertise. आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैंने कम से कम 4 नहीं तो 3 सेशंस तो मैं करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का जो एटलीस्ट थोड़ा सा हमारे पास मटेरियल हो जाए, so that we could have a good midterm exam. So that's all from my side. If there would be any question, I have told you people the procedures.